So hello and welcome back to the channel Clarity for GPSC and UPSC examination. This is the strategy video for GPSC 2026. આવતા વર્ષે કેવી રીતે તૈયારી કરીએ કે જેથી તમારે જીપીએસસી ક્લિયર થઈ જાય, એમની શું ફૂલ પ્લાનિંગ હોવી જોઈએ અને શું કરવાનું, હાઉ ટુ પ્રિપેર હોલિસ્ટિકલી ટુ ક્લિયર ધીસ એક્ઝામિનેશન ઇન ધ અપકમિંગ યર. સો વી હેવ 5 to 6 queries from the comment section and I have merged all these in one video. So you will find each and every answer from your queries which have been asked so far. So starting from how to start from zero, then what to do, શું કરવું, રોડમેપ, શું આટલો કરવાથી પાસ થઈ જાય. I will say that mostly people ask this question that I have done a lot in this examination but I cannot clear this examination so far. So we will discuss it also. Hard work એટલે શું? Most people say that he or she has done multiple times of hard work, like they have done so much hard work but they cannot find it in their result. So we will discuss this also. એટલે હાર્ડ વર્ક ડિસ્કસ કરવાનું છે. પછી સ્માર્ટ વર્ક કોને કહેવાય આ પણ આપણે લોકો ડિસ્કસ કરીએ ઇન ધીસ subsequent parts only. So before starting, let me introduce you with someone. So I will straightforwardly go there. So this is the charismatic personality. I am assured that every person in Gujarat, including India, knows this personality because he has the charm and versatility to spread his art in each or every part of Gujarat. Since he started singing, he is now at the peak of his journey. So this is the thing which you should read about him, or this is not necessary to read, it's just quite simple things which I have written. What is the moral of story? What I need you to know from his life? He has sang a song, गोतीलू उन्होंने गाया था, बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है. आई पर्सनली लाइक दैट सॉन्ग. सो उस सॉन्ग से उनकी जो वर्सटाइलिटी दिख रही है, उन्होंने वो सिंगर भी है, सॉन्ग राइटर भी है, कंपोज़र भी है. सो यहाँ से हमें क्या सीखना है कि भाई वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं एक ही टाइम पे, एक ही बंदे हैं वो, एक ही टाइम पे सब कुछ कर रहे हैं. सो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे जो एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, यही डिमांड है उसकी कि हमें वर्सटाइल बनना पड़ेगा. कुछ लोग होते हैं एमसीक्यू में बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत तुक्के भी उनके सही लगते हैं. कुछ लोग होते हैं आंसर राइटिंग में स्मार्ट होते हैं. कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है ना कि ये दोनों नहीं आता होगा. पर्सनालिटी से उनको लगता है कि मैं पास हो जाऊँगा. नो गाइस, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस देन यू आर इन शैडो जोन, आई कैन से. आपको इंटरव्यू, मेंस एंड एमसीक्यू तीनों चीज़ों में प्रिपेयर होना पड़ेगा. प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों ही ऐसी स्टेज हैं कि तीनों को एक साथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. हम सीए की एग्ज़ाम नहीं दे रहे कि प्रीलिम्स वापस नहीं देनी पड़ेगी, हमें देनी पड़ेगी अगर हम मेंस में या इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं. वी नीड टू डेवलप अवर पर्सनैलिटी ओवर अ ईयर. वी हैव वन ईयर और 2 months एक्स्ट्रा टू પ્રિપેર ફોર ધીસ એક્ઝામિનેશન. તો આપણે ઇન્ટરવ્યૂની તૈયારી આજથી કરવાની છે. આપણે પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ કરવાની જ છે. અને પછી મેન્સ માટે પ્રિપેર કરવાનું આ હું કહીશ, કેવી રીતે કરવાનું, કેવી રીતે આન્સર રાઇટિંગ સ્ટાર્ટ કરવાની, શું કરવું. પછી એમસીક્યુ મસ્ટ છે. પ્રિલિમ્સ પાસ જ ના થવાય, અને પ્રિલિમ્સ ના થવાય તો મેન્સમાં જવાનું થવા જ નથી. સો ધીઝ ઓર ધ થિંગ્સ, these 3 things we need to prepare. So वर्सटैलिटी आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं है धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी. सो हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट वाली चीज़ से. सबसे पहला पॉइंट देखो, बिल्ट टेम्परामेंट इन यू. टेम्परामेंट जनरेट करो. पहले 1 महीना लो, आराम से सोचो, इस एग्ज़ाम के बारे में देखो, एक्सप्लोर करो, आइडियाज़ लो, डिस्कस करो कि क्या करना है. सिलेबस देखो, PYQs देखो, डिमांड क्या है वो देखो. कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप में
कि આઈ કેન ડુ, આપણે કરી શકે છે, શક્ય છે. ઓકે, રેડી ફોર ધ વર્સ. નો સ્ટેપ બેક અન્ટિલ 100% એફર્ટ. આપણે આવું થાય છે કે આપણે લોકો વિચારીએ છીએ કે હું 100% આપું છું, પણ નથી આપતા. એક દિવસ ભણે છે, બીજા દિવસ ભણે છે, પછી એક અઠવાડિયા સુધી બુક જ ના ખોલાય. સો ધીસ काइंड ऑफ थिंग हैपन विथ अवर लाइफ्स. सो जब तक मेहनत करनी है कि तब तक आप ये ना सोच लो कि मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट दिए हैं, तब तक आप ये एग्ज़ाम को मत छोड़ो. उसके बाद आप प्लान भी देख सकते हो कि भाई इतना मैंने कर लिया है, इट इज़ आउट ऑफ दिस ग्राफ. ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का एक ग्राफ है, ठीक है. मुझे इससे बाहर जाने के लिए जितना एफर्ट लगा सकता है मैंने लगा लिया, अब भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा. देन यू कैन थिंक फॉर अदर थिंग्स, ठीक है. देन अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे. व्हाट टू डू, शू करूँ. स्टेप 1, टेक 1 month ऑफ ब्रेक और 1 week 1 month वॉट एवर द टाइम, एक्सप्लोर करो. मैंने जैसा बोला एग्ज़ाम को समझो इसे कि भाई अब क्या डिमांड है, नया सिलेबस क्या बोलता है, पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, NCERTs, वो सब चीज़ें देखो. फाइंड सम गुड peer groups, फ्रेंड्स, mentorship who will selflessly guide you in your preparation journey. Then step 3, do not buy each and every book at one time. આવું થાય છે કે આપણે લોકોને એક બુક લિસ્ટ આપી દે લોકો, જે મેન્ટર્સ હોય, જે ટીચર્સ હોય, જે પીયર ગ્રુપવાળા હોય, એ કેવી રીતે એ આપણે લોકોને એક બુક લિસ્ટ આપી દે અને પછી કહે કે આ ફલાણી શોપ છે, અહીંયા જાવીને તમે આ બુક્સ લઈ આવો અને પછી વાંચવું સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું. બસ આટલો જ થાય છે. બટ दिस इज़ नॉट द थिंग. हमें सारी किताबें लेके नहीं बैठना, बिकॉज अभी हमें पता नहीं कि कौन कौन सी बुक्स ज़रूरी है एकदम, अगर आप न्यू कमर हो तो. सो सबसे पहले बेसिक्स बुक्स लो आप. NCERTs लो, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी 6 to 10 की, वो पढ़ो आप. डिस्क्लेमर. सो इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं. डिस्क्लेमर दिया है मैंने कि गुजरात में कोई पण कोचिंग सेंटर जोड़े જતાં પહેલાં એનાલિસિસ કરવાનું કોસ્ટ પ્રોફિટનું, કારણ કે એ લોકો ક્વોલિટી સારી ના આપે અને એસ્પિરન્ટને ગુમરાહ કરીને એમનો ધંધો વધારવાનો પુરાનો તરીકો છે. ઓકે, સો એ શું કરે છે કે એમનું ઓનલી પર્પઝ શું છે, પ્રોફિટ કમાવાનું અને તમારી જેબથી પૈસા નીકળવાના. સો દે જस्ट वॉन्ट मनी फ्रॉम यू गाइस. फीस चाहिए, पहले फ़ीस ले लेंगे, उसके बाद में आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे. दे विल नॉट पे अटेंशन टू यू. सो बिफोर गोइंग टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद और गांधीनगर, प्लीज़ पहले एनालिसिस करो. जहाँ जाके देखो, 4-5 दिन क्लास में जाओ, कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है, नहीं बढ़िया लग रहा, नहीं जम रहा, तो आई विल प्रेफर फ्रॉम माई साइड कि आप ऑनलाइन ही लेक्चर्स लो, क्लासेस लो. अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट का मुझसे प्रेफरेंस चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगी कि मैंने यहाँ से प्रिपरेशन किया है. मैंने नो डाउट मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी की है, बट मैं वहाँ पे नहीं गई 1 महीने से ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि भाई कुछ नहीं पढ़ा रहे, डस्टबिन है, जस्ट पैसे वेस्ट है. फर्स्ट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एग्ज़ाम की डिमांड समझना बहुत ज़रूरी है. हमें सिर्फ फैक्ट रटने नहीं है, अब न्यूसेंट रट के नहीं होगा ये एग्ज़ाम. हमको एक्चुअली प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिकली थिंकिंग डेवलप करना है, टेम्परामेंट डेवलप करना है. ये सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होगी. सो अब हम बात करते हैं रोड मैप की. देखो, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाइपोथेटिकली मैंने एक रोड मैप बनाया है. इसी तरीके से आपको भी आपका रोड मैप बनाना है. मैंने जून को एग्ज़ाम डेट मान के ये वाला प्रिपरेशन किया है रोड मैप का. सो अगर आप मार्च से स्टार्ट करते हो, इसी महीने से, तो आप ये सोचो कि सिलेबस क्या है. ये देखो, आप बार बार सिलेबस पढ़ो, उसकी डिमांड क्या है वो देखो. डिमांड कैसे पता चलेगी, PYQs देखो. फिर अप्रैल महीने में आप NCERTs करो. हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है. मई में आप सब्जेक्ट वाइज अप्रोच स्टार्ट कर दो या क्लासेस कर लो. ठीक है, क्लासेस आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी कर सकते हैं, बट
डिस्क्लेमर अगेन कि पहले परख लेना कि भाई कौन से लेवल का पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको यूपीएससी वाला ही पढ़ना है। फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये मंथ्स हैं, ऐसे आपको सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं। सितंबर से आइडियल डे है, आइडियल मंथ है जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। 3-4 महीने ऐसे राइटिंग आंसर राइटिंग करो, आराम से अच्छे से पढ़ाई करो। जनवरी तक मेंस आप करो, फिर फेब से लेके मई तक आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो, टेस्ट सीरीज दो, फिर आपका डी डे होगा जून में। ऑल द बेस्ट गाइस, यू हैव क्रॉस्ड योर 1 ईयर। आपने 1 साल बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है ऑलरेडी। यू हैव डन अ लॉट इन योर लाइफ एंड इन योर दिस प्रीवियस 1 ईयर। सो 2026 में आप पहुंच चुके हैं एंड यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस, टेम्परामेंट, इंटेलेक्चुअलिटी, conceptual clarity, each and everything which this exam is demanding. So ये सुन के बहुत अच्छा लगा ना, अच्छा लगेगा क्योंकि जब आप इतना सब प्रिपेयर कर लेंगे ना, सो यू हैव दिस કોન્ફિડન્સ ગાઈસ. હવે તમે એવું વિચારતા હશો કે શું આટલા કરવાથી પાસ થઈ જાય? ઓકે, સેલ્ફ ભાઈ લોકો સોરી ફોર ધીસ લેંગ્વેજ, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોવું જોઈએ, મોટિવેશન હોવું જોઈએ. ઠીક है, એ રીલમાંથી મોટિવેશન નથી મળવાનું. सेल्फ कॉन्फिडेंस પોતે જ હોય છે, खुद ही मिलेगा, खुद ही डेवलप होगा. आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या रखनी है अपने अंदर? खुद पे ट्रस्ट करना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जब हम बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल मन नहीं लगेगा, बट ट्रस्ट नहीं खोना है, छोड़ नहीं देना है. प्लीज़ डू नॉट लीव इट इन द मिडल. यू आर जस्ट हाफ वे, यू कैन डू इट. फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बहुत ही नॉर्मल है, सबको होता है. आपको हो रहा है ना, आज दूसरे सारे बंदों को हो रहा है, सारे एस्पिरेंट्स को हो रहा है, सबको हो रहा है. फेलियर बहुत ही नॉर्मल है, फेलियर बहुत नॉर्मल है. आप एक बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ओके, फेल होके ही इंसान आगे बढ़ता है, एक्सपीरियंस होता है. बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बिल गेट्स है, फिर और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं जो फेल हो के ही आगे बढ़े हैं. तो फेलियर से पीछे नहीं होने का. देन स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम ज़ीरो. अब एक बार फेल हो गए, फिर ज़ीरो से स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा कष्ट आता है कि નથી થાય મારેથી, હું આટલો જ નથી કરી શકું, હું પ્રિલિમ્સ પાસ નથી થવાતી, તો मीन्स तो क्या थी. तो ये सब नेगेटिविटी नहीं रखनी है. यू जस्ट हैव टू बिल्ड योर सेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग कि आप बार बार इस चीज़ में जाने से कभी ना डरें. मेक स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम ज़ीरो विल मेक यू अ रियल सिविल सर्वेंट. क्योंकि यही तो पहचान है सिविल सर्विसेज की कि कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइस. नेवर गिविंग अप एटीट्यूड इज़ द मस्ट थिंग विच इज़ द नीड ऑफ दिस एग्ज़ाम. सो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक की, हार्ड वर्क. सो હાર્ડ વર્ક એટલે શું? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, રોજ સવારે ઊભા થઈને સેમ જ વર્ક કરવાનું છે, વાંચવાનું અને વાંચવાનું જ છે. 1 વર્ષ સુધી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરવાની, યોગા કરવાનું, મેડિટેશન કરવાનું, વોક કરવાની, ડાયટ ચેન્જ કરી દેવાની અને બહુ બધું કરવાનું. રોજ વાંચવું પડે. કન્સિસ્ટન્સી ઇઝ ધ મસ્ટ, ઇઝ ધ કી ફોર ધીસ એક્ઝામિનેશન. નેવર ગીવ અપ એટીટ્यूड, रूटीन फॉलो करવું જોઈએ. नो ब्रेक. दिस फॉल्स नरेशन, क्योंकि यार सबको ब्रेक चाहिए होता है. वी ऑल वांट्स ब्रेक. यू कैन टेक ब्रेक्स वेन एवर यू फील इट्स टू मच टू यू, बट इट डजेंट मीन दैट यू आर गिविंग अप. ब्रेक लेना जनरल है, नॉर्मल है, ह्यूमन बिहेवियर है. वी कैन नॉट स्टडी फॉर 20 आवर्स अ डे, वी कैन नॉट स्टडी एवरी डे. आप ये बात हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना. एंड वेन एवर यू फील लाइक इट्स इनफ फॉर नाउ, प्लीज़ स्टेप बिहाइंड एंड जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ और इमर्ज योर सेल्फ इन सम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़. सो इट विल ऑल्सो डेवलप योर हॉबीज़. अंडरस्टेન્ડ એન્ડ ડેવલપ યોર સેલ્ફ. સો પછી આ છે આપણું લાસ્ટ ટોપિક આજનું, સ્માર્ટ વર્ક એટલે શું?
स्मार्ट वर्क એટલે मेकिंग वर्क ईजियर, स्लोली डेवलप होगा। ईजियर मतलब कैसे? ऐसा कहावत है कि जो सबसे ज़्यादा लेज़ी इंसान है ना, उसको सबसे ज़्यादा हार्ड काम दे दो तो वो बहुत ईजी से उसे कर देगा, बहुत ही ईजीली कर देगा उसे। सो उसमें स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा होता है, पर हमें भी चाहिए स्मार्ट वर्क, वी ऑल्सो नीड, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत चीज़ें पढ़नी है। हाउ टू डील विद इट? सो वी हैव माइंड मैप्स, PYQs, MCQ सॉल्विंग ट्रिक्स, एवरीथिंग। माइंड मैप से स्टार्ट करना है आपको, फिर ये धीरे धीरे स्टेप वाइज सब चीज़ें आ जाएंगी। माइंड मैप्स, एक सब्जेक्ट पढ़ा, 3 बार पढ़ लिया, उसे अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन हो गया। अब सिर्फ वो चीज़ों का माइंड मैप बनाओ जो तुम्हें याद नहीं रहती है। बहुत ही की वर्ड्स में बनाना है, बहुत अच्छा से बनेगा। और ये भी, इफ़ यू वांट्स आई कैन ऑल्सो टीच यू हाउ टू मेक माइंड मैप्स ऑफ अ सर्टन सब्जेक्ट्स। सो लास्ट है, वन टाइम वॉच एनी क्लास। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कि भाई मैंने एक बार एक क्लासेस देख ली, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, मतलब मैंने एक बार देख लिया, नोट्स बना ली है, 1 महीने तक उसको देखा ही नहीं, नोट्स को जाने दिया, 2 महीने बाद मैं भूल गई मैंने क्या पढ़ा था। सो પછી મારે પાછું જોયું પડે, सॉरी फॉर दिस, मतलब वापस देखना पड़ता है मुझे वापस। सो मैंने वापस देखा एंड देन व्हाट, टाइम वेस्ट हो गया। 1x पे देखो क्लास, सारी क्लासेस, नेवर हैव टू वॉच इट अगेन, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लास ऐसे इंसान की देखो, ऐसे टीचर के देखो, ऐसे मेंटर के देखो जो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, नहीं हो सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एक इंसान एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है, आप उससे वही पढ़ो। और છેલ્લો છે, જોબની સાથે પ્રિપરેશન કેવી રીતે થાય? સો હા, થાય છે, બહુ બધા જ લોકો એવા છે કે જોબ જોડે એક્ઝામ ક્લિયર કરી દે સ્માર્ટ વર્ક કરીને। ડેલી 4 to 5 ક્વોલિટી સ્ટડી કોને કહેવાય? કે હું વાંચવા બેસી છું અને બુક છે મારા જોડે મારો ફોન પણ છે, હું ફોન જોઉં છું, પછી 1 પન્નું વાંચી લઉં, પછી ફોન જોઉં છું, પછી 2 પન્નું વાંચું, તો આ ક્વોલિટી સ્ટડી નથી। ક્વોલિટી સ્ટડી શું છે કે તમારા જોડે એક એપ્લિકેશન હોવી જોઈએ તમારે ફોનમાં, યા ફોન બંધ કરી દો પછી વાંચવા બેસો અને ક્વોલિટીથી 3 to 4 hours કોન્સન્ટ્રેશન જોડે વાંચો અને પછી એમને 10 મિનિટ્સ માટે સેલ્ફ રિવિઝન કરો માઇન્ડમાં જ, બરાબર? આ છે क्वालिटी स्टडी। फिर आता है रिसोर्सेस। सो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे GPSC 2026 के लिए इस नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी तक कंप्लीट सिलेबस नहीं आया है। सो मैं सारी बुक लिस्ट, सारा रिसोर्स बताऊंगी इन द अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, क्योंकि अभी तक सिलेबस लॉन्च नहीं हुआ है। फॉर प्रीलिम्स, अगर आपको प्रीलिम्स के लिए देखना है तो मैंने ये सोर्सेस का एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छे से। मैंने एक बुक उसमें अच्छे से लिखी है, एक सोर्स अच्छा से लिखा है, आप वहाँ से कर लो। उसमें आपको इंग्लिश मीडियम का भी कंटेंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, शुभकामनाओं તમે લોકોને एंड एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। योर स्ट्रगल विल पे यू वन डे। एंड बाय, सब्सक्राइब if you like clarity for GPSC and UPSC, and if you have any further queries, please ask me in this comment box and I will say all the very best, guys. And this is the end of the session, and I will again say something, that you have to prepare this examination so holistically that you will have this result in the end, that you have tried, at least you tried 100% for this examination. And these all the things which we have discussed in this particular lecture, we are now here, we have finished this. And if you have further queries, please ask freely in this comment box, please do not hesitate for that.